ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आएगा आशीष मिश्रा? Hello. Yes, sir. Okay, so I will take microprocessor and microcontroller lab. So is it your first lab or the second? First lab, sir. First lab. Okay. So initially we will start with the syllabus of this particular lab. So I'm just sharing you the syllabus, the experiment list which we will cover here. So just wait. So most of you, I'm going to share you the screen. Okay. या सभी को दिख रहा है जो शेयर किया है अभी मैंने. Is it visible to all of you? I Yes, sir. share you the Yes, sir. It is visible. list of experiment that belongs to microprocessor and microcontroller lab. The code is KEC552 here. These are some suggestive list of experiments. Start with the first, that is based on 8085 microprocessor. You all are studying in this semester, and the experiment belong to that 80 and 8086, based on some microcontrollers, that is 8255 and so on, 8251. So before going to discuss, we are having some experiment. You can on the page which I have shared to you all. The first one is write a program using 8085 microprocessor for decimal, hexadecimal addition and subtraction of two numbers. So by the AKTU, we have been provided some virtual lab link. So few of the experiments have the virtual lab link through which we can go and access these particular experiments directly. Clear? We can go the programming of that particular related labs, for which we are providing directly the virtual lab link. You can see with the experiment there is a bold attachment. You can see there is a bold letter that is mentioned that through virtual lab link. So few experiments are related to the virtual lab link, and those which are not available with the virtual lab link, that I will provide you either with the form of video demonstration or something like virtual lab link type. Clear? So I will try to provide you. So total number of experiment you need to perform, that is 10. Clear? So here 16 experiments are given, out of which you will perform only 10 experiments, and this is the link for the virtual lab. You can see that is underlined portions. Yes, and initially starting 4 to 5 labs are belong to exactly this particular virtual lab link that is available on this blab.co.in. And so
what we need to perform initially, some experiments are what some experiments are important to us regarding 8085 and 8086 microprocessor. Clear? They can't get escaped. Some like that microprocessor means decimal, hexadecimal addition, subtraction of 8085 means 8-bit 8-bit microprocessor as well as for 16-bit microprocessor. Clear? Then we will discuss about the 2 BCD number addition and subtraction in the experiment number 2 as well using 8085 microprocessor. Then to perform multiplication and division, these are some basic arithmetic operations, clear, which 8085 microprocessor or 8086 microprocessor performs, clear. So initially 3 experiments or 4 experiments are based on totally 8085 microprocessor. Then we will discuss about the largest and smallest number in an array. We just need to find the largest and smallest number in an array of data. So we will provide a data list. So we just need to arrange them to find the largest and smallest number in 8085 instruction set. Then the experiment number 5 is there, clear. So that is based on 8086. So 5, 6, 7 by based on 8086, then we will go for 8, that is based on some interfacing, clear. Then some experiment starting from 10 to 16, that is based on some microcontroller, clear. So initially we will start from the 8085 microprocessor, then we will move to 8086, then we move to what, some microcontrollers, clear. So out of 16 we will do only 10 experiments. And so is it clear to all of you the experiment list? Yes, sir. Okay. Now I'm going to access the link provided below, clear. So ये आपको link दिख रहा होगा नीचे. This is the virtual lab link. I think it is visible to all of you. This is the virtual Yes, lab link, clear, through which we can access the experiments that belong to, clear. जो इससे belong कर रहे हैं, जो आपके syllabus में mentioned है, we can directly access, especially experiment number 1, 2, 3, clear, that belong to this virtual lab link. So अगर मैं इस link को click करता हूँ, I am just showing you. Just wait, I am showing you. So I can. So if I share you, so this is the link. You can see the link is visible to all of you. yes, sir. ये वो लिंक है जो हम लोगों ने मैंने वहां से कॉपी किया हुआ है, ठीक है. सपोज मैं इसको अगर एक्सेस करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको ब्राउजर के थ्रू ओपन किया. सपोज वी आर ओपन दिस विद द ब्राउजर, ठीक है. तो अभी देखिए ये एक्सेस होगा आपका. If you all have any issue regarding sharing, then you can tell to me. Yes, if any issue regarding sharing. So when I have accessed this link, we got this result. ये दिख रहा होगा सभी को. We got this type of interface. Clear? When I have accessed this particular link, we move to this particular interface or page. Clear? Now suppose I am accessing this. You can see this was the first experiment. Clear? Addition of two 8-bit numbers and 16-bit numbers. Clear? ये सभी को दिख रहा होगा, है ना? Yes, sir.
ओके, सो जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया, ठीक है, जो हमें प्रोवाइडेड है सिलेबस में, तो ये हमारे पास इस तरह से इंटरफेस खुल गया ऑफ दिस इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूट दैट इज द्रोणाचार्य कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक, एंड दैट इज इन द गाइडेंस ऑफ आईआईटी बॉम्बे देयर. सो suppose I am just clicking on this for first experiment, that is basic addition of two 8-bit numbers and addition of two 16-bit numbers. So I am just clicking on this. So when I have performed the clicking, so I just move to what? This particular interface that belong to that particular objective. Clear? ये सभी को समझ में आ रहा है ना जैसा मैं कर रहा हूँ इसमें? Okay. सो जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मैं इस इंटरफेस पे पहुंच गया, ठीक है. यू कैन सी हियर द एम इज गिवन, these are the list provided in the left corner, clear, on which if you click on every topic and you will get the information related to that, clear. So suppose we are starting with the objective. The objective is write a program using 8085 and verify for 8-bit addition, two 8-bit number addition, and two 16-bit number addition with carry. Clear? So and then you go to the introduction part. Then you can see here are the introduction of 8085 microprocessor. Clear? Which you all are studying right now. Clear? You all are studying as a subject, I think, microprocessor as a subject in this particular semester. Am I right? Yes, sir. Okay. So if you see this, if you go on the introduction page, you can see we have the introduction related to some detailed information for 8085 microprocessor. 8085 microprocessor basics, as well as in the detailing or into the subject. Clear? So before going to start, we just want to brief you before going to start the experiments how we can do the addition of two 8-bit numbers or 16-bit numbers. So I just want to give you an overview of 8085 microprocessor. This is an 8-bit microprocessor. Clear? A microprocessor performs exactly what? Some arithmetic or logical operations. Clear? That is a processor belong to the computer, here like CPU, which is exactly perform the operations like arithmetic or logical. Clear? So it is a type of machine. It is a type of machine that provides you the coding. Clear? That is based on assembly language. Clear? And आप लोगों ने कोडिंग विद लैंग्वेज भी दो तरह का सुना होगा. एक मशीन लैंग्वेज होती है, दैट इज एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, और दूसरा कौन सा लैंग्वेज सुना है, पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में? Have you studied about high level language? Can anyone explain high level language? What is the difference between high level language and machine language? तो मशीन बताएगा लैंग्वेज मुझे? बाइनरी कोड्स लेती है और हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें हम लोग बात करते हैं नॉर्मली. Okay. And what is assembly language? Assembly language. Are you aware with the assembly language? The microprocessor programming is based on what? Assembly language or something else? Hmm? Okay, so I think you all are not aware with this right now. Have you studied regarding some programming related to 8085 till now? अभी तक तुम लोगों ने कुछ पढ़ा है प्रोग्रामिंग से रिलेटेड? कुछ पढ़ा है क्या आपको 8085 में?
नहीं पढ़ाएंगे? ओके ओके, सो चलिए मैं ही थोड़ा बहुत आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सो एग्जैक्टली मतलब ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो है, इट इज नॉट अ इनिशियल वर्जन ऑफ द प्रोसेसर। क्लियर? इससे पहले भी आपके प्रोसेसर आए थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 4004, ठीक है, स्टार्टिंग में। तो इससे पहले भी प्रोसेसर्स वर डिजाइन, दिस इज ऑफ 8 बिट, इससे पहले 4 बिट के प्रोसेसर भी थे। क्लियर? सो व्हाट इज द मेजर रोल दैट बिलोंग टू द 8085 माइक्रो प्रोसेसर? हम लोग आगे क्यों पढ़े? क्योंकि हम, आप देख सकते हैं, द प्रोसेसिंग स्पीड मैटर्स अ लॉट। क्लियर? कोई भी प्रोसेसर जब डिजाइन होता है, उसका अपग्रेडेशन अगर आता है तो वो सीधे सिस्टम की स्पीड पे या परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। क्लियर? तो जो ये प्रोसेसर डिजाइन हुआ, जैसे 8085 आया, फिर 8086 आया, इसके बाद और भी प्रोसेसर हमारे डिजाइन में पेंटियम वगैरह आए, और जो भी हैं सब, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? सब स्पीड अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है? प्रोसेसर का काम ही है कि जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, उसका डिले कम करना, उसको फास्ट रिस्पॉन्ड करना। क्लियर? वो जितनी जल्दी, जितना क्विक रिस्पॉन्ड कर सकता हो। क्लियर? सिस्टम को उतना ही स्मूथ बनाएगा, उतना ही फ्लेक्सिबल बनाएगा, उतना ही उसको एफिशिएंट करेगा। ठीक है ना? तो दिस इज 8 बिट का आपका माइक्रो प्रोसेसर है, विच एग्जैक्टली कैरी द 8 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का मतलब क्या है? इट कैन हैंडल द 8 बिट ऑफ डेटा। क्लियर? 8 बिट की इंफॉर्मेशन को ये कैरी कर सकता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 8 बिट ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? सो अब आप इसमें देखिए, इसमें कई चीजें आप लोगों ने डिटेलिंग में पढ़ी होंगी, कि जैसे द पावर सप्लाई जो हम लोग देते हैं इसको 805 को, दैट इज +5 वोल्ट, डीसी से पावर सप्लाई, and it takes the clock frequency up to 3 megahertz. Clear? Now इसमें कुछ सिग्नल्स होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़े होंगे, जनरली 6 ग्रुप्स में क्लासिफाइड है, यहाँ दिया भी हुआ है, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल एंड सिग्नल्स, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स, and power supply frequency signals. Clear? So these are some signals provided here. Clear? And इसके बाद आप लोग देखिए इसमें power supply and frequency signal, externally initiated signal, then serial input output ports. तो ये सब जो है आर्किटेक्चर का पार्ट है. These are all the part of the architecture. Then we come to the various operation performed are स्टोर 8 बिट डेटा. अभी मैंने बताया था कि एग्जैक्टली 8 बिट का मतलब है कि ये केवल 8 बिट की डेटा को स्टोर कर सकता है, 8 बिट के डेटा को प्रोसेस कर सकता है. क्लियर? ये परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. ये भी हमने बताया था कि जो भी प्रोसेसर है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. ठीक है? टेस्ट फॉर कंडीशन, सीक्वेंस द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर इसको जो मिलेंगी उसी इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे वो टास्क को परफॉर्म करता है. जैसे इंस्ट्रक्शंस का मतलब ये है, उसको आप अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं या लॉजिकल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. अरिथमेटिक का मतलब है उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या समथिंग एल्स, जो भी आप उसको डिवीजन, ये सब आपके अरिथमेटिक ऑपरेशंस के अंदर जाते हैं. क्लियर? सम लॉजिकल ऑपरेशन दे रहे हैं. लॉजिकल ऑपरेशंस का मतलब है कि रिलेटेड टू गेट्स. क्लियर? तो अगर कुछ लॉजिकल ऑपरेशन उसको मिल रहा है तो लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करेगा. ठीक है? दिस इज द मेजर टास्क ऑफ द प्रोसेसर. उसके बाद आप लोगों ने कुछ पढ़ा है कि मेमोरी पढ़ा होगा. टेम्परेरी मेमोरी होता है, परमानेंट मेमोरी होता है. क्लियर? टेम्परेरी मेमोरी में हमारा डेटा टेम्परेरी स्टोर्ड होता है. परमानेंट इज समथिंग लाइक रीड ओनली मेमोरी. क्लियर? जिसमें आपका जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है. क्लियर? कुछ आप लोगों ने रजिस्टर्स भी पढ़े होंगे. रजिस्टर में भी टेम्परेरी रजिस्टर और जनरल पर्पस रजिस्टर. क्लियर? उसमें भी आप रजिस्टर भी एग्जैक्टली आपका मेमोरी का काम करता है, which can hold the data. Clear? टेम्परेरी रजिस्टर है तो टेम्परेरीली होल्ड द डेटा. परमानेंट रजिस्टर है तो इट कैन, जनरल पर्पस रजिस्टर है, इट कैन होल्ड द डेटा. क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास
उसके बाद लोगों ने इंटरप्ट सिग्नल पढ़ा होगा। इंटरप्ट सिग्नल भी हमारे दो तरह के, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। क्लियर? तो 5 आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, 7 आपके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हमारे पास टोटल मतलब इंटरप्ट सिग्नल भी है। इंटरप्ट में जैसे ट्रैप को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। INTR हो गया, दैट इज इंटरप्ट। RST हो गया, रीसेट 7.5, रीसेट 6.5, रीसेट 5.5, and then trap. Trap is having the highest priority. अगर ट्रैप इंटरप्ट कहीं भी किसी प्रोसेसिंग के दौरान सिस्टम में ब्लिंक करता है, तो इसका क्या मतलब है, आपको वो प्रोसेस जो आपका करंट प्रोसेस है उसको आपको स्टॉप करना होगा, और आपको उस पर्टिकुलर जो भी आपका उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी इंस्ट्रक्शन आ रही है उसको आपको पहले रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ट्रैप के केस में होता है। बाकी सारे क्या है, उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर में रहते हैं, इसको जैसे जैसे जो प्रायोरिटी अलॉट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी, गेट वगैरह में भी पूछा गया है। In 8085 microprocessor, which hardware interrupt is having the highest priority? So that is trap, TRAP, trap. Clear? इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें कई सारे और भी टर्म्स है, जैसे मशीन साइकिल्स हैं। इट इज हैविंग 7 मशीन साइकिल्स। क्लियर? ऑफ कोड, फेज, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट, and interrupt acknowledge, was idle condition, and so many other things are there. Then we are having some instructions related to 8085 microprocessor. It is divided into 5 categories. It's a data transfer. तो डेटा ट्रांसफर के लिए हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? मूव कमांड दे देते हैं, MOV मूव। मूव मतलब डेटा को मूव कराना। ठीक है, वन मेमोरी लोकेशन से सेकेंड मेमोरी लोकेशन पर। ठीक है, फिर अरिथमेटिक एडिशन होता है, एडिशन के लिए ADD कमांड देते हैं। ठीक, लॉजिकल ऑपरेशन उसके लिए XRI कमांड देते हैं। फिर ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग में JNJ कॉल। ठीक है, तो कई सारे हमारे, फिर हॉल्ट है, मशीन कंट्रोल। ठीक है, am I audible to all of you properly? Am I audible to all of you? Yes. Okay. So I am अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर रहा हूँ 8085 से रिलेटेड। बाकी भी प्रोग्रामिंग पे हम लोग आएंगे बाद में। सो उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन सेट्स हैं, आपको मैंने बता दिए। फिर कुछ एड्रेसिंग है। एड्रेसिंग में भी आप देख सकते हैं, देयर आर एग्जैक्टली 5 टाइप ऑफ एड्रेसिंग। इमीडिएट एड्रेसिंग, रजिस्टर एड्रेसिंग, डायरेक्ट एड्रेसिंग, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, इम्प्लिसिट एड्रेसिंग, ये सारी एड्रेसिंग है। ये पिन डायग्राम है। This is the pin diagram of 8085 microprocessor. It is of 40 pin structure. Clear? यहाँ 40 pins हैं, starting from the left end, that is 1, to right end up to 14. Clear? The 40th pin is the supply जो आप जिसको दे रहे हैं, DC supply, that is VCC, that is 5 volt. Clear? And the left pin, that is 20th pin पे हम लोगों ने क्या दिया है, ग्राउंड दिया हुआ है। ठीक है ना? बाकी इसमें हमारे पास कुछ एड्रेस बस है, कुछ डेटा बस है। एड्रेस बस में भी कुछ ऐसी हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं, या हमारी हायर ऑर्डर एड्रेस है, और कुछ हमारे लोअर ऑर्डर एड्रेस हैं। तो जो हमारे हायर ऑर्डर एड्रेस हैं वो A8 से A15 तक हैं। ठीक है, और जो हमारे लोअर ऑर्डर एड्रेस हैं वो हमारे AD0 से AD7 तक हैं, जो कि पिन नंबर 12 से लेके 19 तक का है। ठीक है, जो 12 से 19 तक उसको हम लोग लोअर ऑर्डर एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, उसमें एड्रेस एज वेल एज डेटा बोथ आर लास्ट, उसमें दोनों चीजें अवेलेबल हैं, एड्रेस एज वेल एज डेटा, एंड डेटा बस लैस विद द एड्रेस। क्लियर? और जो हायर ऑर्डर एड्रेस है उसमें केवल एड्रेस इंफॉर्मेशन है।
जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, क्लियर। उसके बाद कुछ हमारे पास रीसेट पिन है, RST 7.5, 6.5, 5.5, क्लियर। दीज आर इंक्लूडेड ऑन 9th, 8th एंड 7th पिन, क्लियर। इसके बाद आपका हाँ इंटरप्ट में ट्रैप आ गया, ट्रैप आपका 6 पे आ गया। ये सारे ट्रैप सिग्नल्स हो गए, दैट इज द बेस्ड ऑन हार्डवेयर इंटरप्ट। इसके बाद आप देख सकते हैं SOD एंड SID लिखा हुआ है। SOD का मतलब होता है सीरियल इनपुट डेटा, SOD का मतलब सीरियल आउटपुट डेटा, क्लियर। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो है आपका होल्ड है, HLDA है, क्लियर। होल्ड क्लॉक आउट है, रीसेट इन है, रेडी है। ये सब क्या है? ये सब आपके कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं या कुछ कमांड है जो हमें इसमें इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? 8085 आर्किटेक्चरल प्रिंट डायग्राम के लिए। मेमोरी रीड है, मेमोरी राइट है, क्लियर। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ 8085. It is having some general purpose register, that is B, C, D, E, H, L, with stack pointer, program counter, increment or decrement address latch, which is covered with the address buffer, data address buffer, timing and control signal, clock ready, read write, ये सारे चीजें हैं, ठीक है, टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स के साथ। देन वी आर हैविंग इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर, फ्लैग रजिस्टर, क्लियर। उसके बाद टेम्परेरी रजिस्टर, देन एक्यूमुलेटर। सो ऊपर आप देख सकते हैं SID एंड SOD, दैट इज सीरियल इनपुट डेटा, सीरियल आउटपुट डेटा। उसके बाद लेफ्ट में देख सकते हैं कुछ हार्डवेयर इंटरप्ट है हमारे पास, क्लियर, जो कि इंटरप्ट कंट्रोलर के ऊपर लगे हैं। वो हार्डवेयर इंटरप्ट कौन कौन से हैं? INTR, ट्रैप, RST 5.5, 6.6, 7.5, ठीक है। तो ये सब हमारे, और INTA दैट इज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। तो INTR आपका जो होता है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट होता है, और INTA क्या होता है? इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, क्लियर। So these are some interrupt signals. Now if we go further, हाँ ये जो मैं आपको बता रहा था, दिस आर्किटेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इफ यू टॉक अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ दिस, ये जो ALU है, ये जो ALU बीक में दिख रहा है आपको, दिस इज द प्रोसेसर। यही आपका है जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। सो इट इज योर प्रोसेसर एग्जैक्टली व्हिच परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन with the data available to this particular ALU section, clear. Now, and we are providing data from where? We are having, suppose we want to add two hexadecimal numbers, clear. Suppose we have one hexadecimal number is A, clear, and another hexadecimal number is B. So suppose we want to add A plus B. So if we add A plus B, then result will store where? The result will store in the accumulator again, clear. The result will store in the accumulator again. So A is again accumulator, B is another data position, clear, yeah, another memory address, and A is again the accumulator. So A और B ऐड कर रहे हैं, फिर हमारा फाइनल रिजल्ट accumulator में स्टोर हो रहा है। तो सपोज we are having a data in the temporary register, एक बार डेटा टेम्परेरी रजिस्टर से आएगा, दूसरा डेटा एक्यूमुलेटर से आएगा, वो दोनों ALU में जाएंगे। देन ALU में जाने के बाद उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होगा या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अगर आप ऐड कर रहे हैं तो दोनों डेटा ऐड हो जाएगा, अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। और ये परफॉर्म कैसे करेगा? इसको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी ना, इंस्ट्रक्शन चाहिए इसको, बिना इंस्ट्रक्शन के तो काम करेगा नहीं। तो इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेगी? इंस्ट्रक्शन मिलेगी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर से, क्लियर। इट विल गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, क्लियर। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस जब, या देखिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लगा हुआ है, क्लियर। सो इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ये सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। इसके ऊपर एक फ्लैग रजिस्टर लगा है। फ्लैग रजिस्टर क्या काम करेगा? फ्लैग रजिस्टर में आप लोग देखे होंगे
कैरी भी होता है फ्लैग रजिस्टर में, एक कैरी फ्लैग होता है ना, कैरी फ्लैग, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सब, पैरिटी फ्लैग। आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? फ्लैग रजिस्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 5 फ्लैग्स होते हैं टोटल, कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ठीक, साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग। ये सब मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एक डेटा हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर से आ रहा है, एक डेटा एक्यूमुलेटर से आ रहा है, जो कि मैंने a प्लस बी बोला ना। फिर ये दोनों ALU में गए, ALU में अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, दोनों का ऐड हुआ, फिर से रिजल्ट हमारा कहाँ चला जाएगा? रिजल्ट चला जाएगा 8 बिट इंटरनल बस के ऊपर, ठीक है। इंटरनल बस में आपका क्या क्या कैरी हो रहा है? एड्रेस है, डेटा बस है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली डेटा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तो जो डेटा आपको मिला ऐड होने के बाद भी वो 8 बिट का डेटा है या 16 बिट का इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन इस सीरियल बस से होते हुए फिर कहाँ जाएगी? एक्यूमुलेटर पे जाएगी। जो एक्यूमुलेटर दिख रहा है, दिस विल हैव द फाइनल आंसर या फाइनल रिजल्ट। क्लियर? सो दिस इज द टोटल फंक्शनिंग ऑफ दिस। और जब ये पूरा परफॉर्म हो जाएगा देन इट विल गेट रीसेट, मींस रीसेट होगा तो फिर से फ्रेश डेटा आएगा। तो इस तरीके से ये चलता रहता है, ठीक है। ये जो SID एंड SOD लिखे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ से आपका जो सीरियल बस है, यहाँ से इनपुट डेटा ले रहे हैं और आउटपुट डेटा दे रहे हैं। मतलब इनपुट सीरियल इनपुट डेटा इनको मिल रहा है और आउटपुट डेटा निकल रहा है सीरियली। क्लियर? तो SID स्टैंड फॉर सीरियल इनपुट डेटा, SOD स्टैंड फॉर सीरियल आउटपुट डेटा। तो ये जो सीरियल इनपुट डेटा है, ये 1 by 1 यहाँ आ रहा है 8 बिट इंटरनल बस में, और सीरियल आउटपुट डेटा यहाँ से 1 by 1 आउटपुट हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारा ये टोटल आर्किटेक्चर है। दिस इज द आर्किटेक्चर ऑफ दिस 8085 माइक्रो प्रोसेसर। नाउ इफ वी डिस्कस अबाउट so if we discuss now about some other terms clear related to this, so just wait this। ये देखिए यहाँ पे कुछ आपके एड्रेस बसेस हैं जो जिनको हम हायर ऑर्डर एड्रेस बोलते हैं, दैट इज फ्रॉम A8 to A15। दिस इज हायर ऑर्डर या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। these address bus is carrying the most significant bits and AD0 to AD7, ठीक, it is a multiplex address data bus। मल्टीप्लेक्स में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें एड्रेस और डेटा दोनों हमारे कंबाइंड हो रहे हैं। दिस इज ए मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डेटा बस। क्लियर? दीज आर यूज्ड फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अभी हमने बताया था ना, ये जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होते हैं उसमें हमारा इंक्लूडेड होता है। दिस इज यूज्ड फॉर द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्लियर? और जो A8 से A15 तक है वो सब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। क्लियर? दैट आर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, सो इसके बाद ALE जो है दैट इज एड्रेस स्लैश इनेबल है। क्लियर? अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं AD0 से AD7, इसमें एड्रेस और डेटा दोनों है, जो कि मल्टीप्लेक्स सिग्नल इसको बोलते हैं हम लोग, क्योंकि दोनों कैरी हो रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि क्लॉक साइकिल्स जो होती है, मशीन साइकिल आप लोगों ने पढ़ी होंगी, अगर पढ़ाया गया होगा आप लोग को, तो मशीन साइकिल्स में एक पर्टिकुलर क्लॉक ड्यूरेशन के लिए ये हमारा एड्रेस और डेटा एक साथ चलता है। ठीक है ना, एक साथ हमारा ये फंक्शनिंग करता है। ठीक है, तो अगर क्लॉक साइकिल मैं डिस्कस कर लूंगा आपसे, जो मशीन साइकिल है, तो शायद आपको क्लियर होगा ये। देन एड्रेस लैच इनेबल है, दैट इज ALE सेक्शन। ये हाई होता है फॉर फर्स्ट क्लॉक साइकिल ऑफ द मशीन। जैसे पहली क्लॉक साइकिल हाई होती है, उसी के साथ ये भी हाई हो जाता है। It enables the lower 8 bit of the address to be latched either to the memory or external latch। क्लियर? फिर इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी है। ठीक है, फिर स्टेटस सिग्नल है। स्टेटस सिग्नल के 4 ऑपरेशंस हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1।
तो अगर दोनों स्टेटस सिग्नल 0 हैं तो ये ऑपरेशन होगा हॉल्ट ऑपरेशन, अगर 0 1 है तो इट विल राइट ऑपरेशन, 1 0 है तो रीड ऑपरेशन, 1 1 है तो फेच ऑपरेशन। क्लियर? so these are some different status signals. Then hold, HLDA अभी हमने बताया था, this is the acknowledgement. HLDA is what? HLDA is the acknowledgement signal used to indicate hold request that has been received. Clear? INTR क्या है? That is the interrupt signal जो अभी हमने आपको बताया था. This is what, जैसे ये आएगा तो माइक्रो प्रोसेसर सस्पेंड्स इट्स नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शनिंग या कोई वर्क परफॉर्म हो रहा है और कहीं भी अगर उसमें इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर अपनी नॉर्मल ऑपरेशंस को रोक के उस इंटरप्ट को हैंडल करता है। तो वो इंटरप्ट भी देखेगा कि किस टाइप का इंटरप्ट है। जैसे मैंने बताया था ना, अगर वो हार्डवेयर ट्रैप इंटरप्ट आ जाएगा तो इट विल गिव द फर्स्ट प्रायोरिटी टू दिस पर्टिकुलर इंटरप्ट। ठीक है? और देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, among them trap is having the highest priority। यहाँ मेंशन भी है कि जो ट्रैप होता है उसको हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर? ओके, इसके बाद आपका कुछ सप्लाई वोल्टेज है 5 वोल्ट देते हैं। फिर ये फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में आपको बताया गया कि कैसे कैसे वो सारा एडिशन प्रोसेस विल परफॉर्म। क्लियर? पहले हम क्या करते हैं, HL रजिस्टर पेयर होता है, मान लीजिए 16 बिट का हमारे पास कोई डेटा है, वो हमको ऐड करना है, तो वी विल टेक दिस इनटू द HL पेयर रजिस्टर एंड अगेन वी विल टेक द डेटा इनटू द फर्स्ट नंबर इनटू द एक्यूमुलेटर। तो उसको वहां से वहां ट्रांसफर करेंगे एक्यूमुलेटर में। द नेक्स्ट पेयर ऑफ नंबर विल आल्सो ऐड इनटू द अनदर रजिस्टर विद सपोज M रजिस्टर। फिर हम क्या करेंगे, फिर HL पेयर फॉर M जो इंक्रीमेंट होगा HL पेयर में फॉर M रजिस्टर, इट विल बी इनिशियलाइज्ड and then load accumulator result into the M register location and then the program will end it। तो ये भी मैं दिखाता हूँ आपको, शायद ना हो रहा हो। Are about the introduction and theory part. Clear? Now this is the theory that belongs to the some how we can perform the programming of this, how we can go step by step. Clear? So this is some theory portion. Now this is some pretext belong to this. Clear? This is some pretext, that is MCQ based, some questions are there. Clear? And you can answer the questions and you will get direct result। जैसे पहला highest priority interrupt कौन सा होता है, तो you can directly mention